pleasure principle. So from the term pleasure principle it is clearly understood that something जिसको कुछ सोचना नहीं है, बस pleasure चाहिए, ठीक है। How will I get pleasure? जो चीज मुझे चाहिए अभी अगर मैंने वो मांगी और वो मुझे मिल गई है तो I will get pleased, I will experience the feeling of pleasure. So it is kindly requested, please सब लोग अपनी videos off कर दें, videos hide कर दें. Okay, so it works on pleasure principle और जो pleasure principle का काम है वो unconscious mind करता है. So Freud ने कहा कि जो उसके अर्लियर नोशन में अनकॉन्शियस थिंग है वो बेसिकली इड है, ठीक है। और जो इड है इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से ही वो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है. सो इड फंक्शंस टू अवॉइड द पेन एंड मैक्सिमाइज प्रेशर एंड मैक्सिमाइजेस प्लेजर, सॉरी. सो इड क्या चाहता है कि मुझे पेन को, हर तरह की पेन को अवॉइड करना है और प्लेजर अटेन करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, a child wants something, a child wants a toy or child wants food. So what the child will do? Child just don't want to experience the pain. बच्चे को अगर आप एक बार ना करोगे वो गुस्सा करने लगेगा, अपना हेड बैंग करेगा दीवार के साथ, डोर के साथ, चीजें उठा के फेंकेगा. he will cry to the extent कि अपनी सांस रोक लेगा. what is that? there the id is working in the child. so it is basically the instinctive thing जो हमारे अंदर from the time of birth present होती है और जो immediate gratification चाहती है needs की और tolerate नहीं कर सकती delay या postponement of these needs. okay, so इसीलिए इसको कहा गया प्राइमरी प्रोसेस थॉट. प्राइमरी प्रोसेस जिसमें बस जस्ट एकदम से आपके दिमाग में कुछ आया है, यू आर नॉट गिविंग रीजन टू इट, यू आर नॉट गिविंग सेकंड थॉट टू इट, यू आर जस्ट सेइंग आई वांट इट. Then there is, before ego I will go for super ego, क्योंकि ego जो है वो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में compensation करवाने का काम कर रहा है ego. So what is then super ego? Super ego is basically the moral aspect of personality. हम सब लोग जानते हैं कि मोरालिटी हम लोगों के लिए बहुत, जो ह्यूमन सोसाइटी में मोरालिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. सो ये मोरालिटी सुपर ईगो कब डेवलप होती है? ड्यूरिंग द 5-6 years ऑफ एज, व्हेन वी स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, वी मेक फ्रेंड्स, वी लर्न मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट. उस टाइम पे जो हमारा सुपर ईगो है वो डेवलप होता है. सो व्हाट हैपेंस इज चिल्ड्रन लर्न अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ बिहेविंग. A child does something that results in praise or punishment, and then they learn what is acceptable and what is not acceptable, what is unacceptable according to the parental norms or society के norms के according. कौन सी चीज acceptable है और कौन सी नहीं, ये child सीखता है. पहले वो behave करेगा, either he will get praised or he will get punished for that behavior. So then he realizes, okay, I am doing this thing, my parents are accepting this thing, my relatives are accepting this thing, and if I am doing so and so, they are rejecting this and they are punishing me for that. So here the child learns the concept of superego. In this way superego जो है वो develop होती है. So superego actually focuses on what I should do. Okay, how I should behave in a specific situation that will suit the norms of society, that will be accepted by my parents. So super ego ये चीज का काम करती है. इसीलिए अगर जब हम सुपर ईगो के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वी विल डेवलप द फीलिंग ऑफ शेम और गिल्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, आपसे कोई बड़ा एल्डर आपकी फैमिली में है, उसने आपको किसी बात के लिए डांटा और आपने आगे से उसको कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया. यू जस्ट कमेंटेड समथिंग हेटफुल और एग्रेसिवली यू सेड समथिंग. तब तो हो गया, बट आफ्टर सम टाइम यू विल फील गिल्ट, you will feel shame ki oh I have done something wrong, I should not have said this to him because he is elder to me, he is my relative, he is in relation, he is some familial relation. So this is how the super ego works कि अगर हम super ego के according नहीं चलेंगे तो it will develop a feeling of shame or guilt in our head.
ओके, सो देन द थिंग जो इन दोनों के बीच से हमें बचाता है, हमें इन दोनों के बीच में कॉम्पनसेट करवा के हमारे बिहेवियर को एक्चुअली में डायरेक्ट करता है, वो है हमारा ईगो. Ego, what does ego works on reality principle. So what is reality principle? Reality principle is looking at the rational aspect of an object. I want to do this, but I have to think, is it possible to get it? How I can get it? When I start thinking about this, I am doing a rational thinking to it. This is the rational aspect of my personality that is working when I start thinking about how to achieve a particular thing or how to plan to get a thing. Okay, so ego is basically the conscious controller or decision maker of our personality, of our behavior. For example, I asked for something and I have not got it. Abhi I have not got it. I am feeling like my id is saying कि हाँ जोर जोर से चिल्लाते हैं, head bang करते हैं, violent act कोई करते हैं, but my ego, what it will say, ego will tell me to wait, reflect and choose a more appropriate way of behaving. Okay, so ego जो है वो हमें बचाता है, हमें ये बताता है कि what is the most appropriate way to behave in a particular situation. So this is what ego does. So ego is that part of personality जो mediate करता है the demands of id without going against the restraints of superego. So ego has to think about id as well and superego as well. So ego will find a way जहां पर हमारा जो id dominate भी ना करे और जो हमारा superego है उसकी भी सुनी जाए. Okay, so this is about the ego and id ego and superego. So ego is the secondary thought process because ये mature thought process है जहां पे हमें ये सिखाता है how to deal rationally with the world. Okay, so it was all about id ego and superego. I hope all this is clear. If you have any queries, you can leave it in the comment section. I'll have a look in the end of the session. Now Freud believed that psychological disorders and particularly the experience of anxiety, it occurs whenever there is a conflict or imbalance among the motivations of id ego and superego. So फ्रॉइड का कहना था कि id ego and superego तीन हमारी पर्सनालिटी के जो स्ट्रक्चर है यही डिटरमाइन करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को भी. अगर इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट या इम्बैलेंस रहेगा, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहेगा, इवन दो कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, लेकिन अगर ये लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा और इम्बैलेंस हो जाएगा तो देन वी विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक्सेसिव एंजाइटी. सो फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ एंजाइटी. फ्रॉइड ने 3 तरह की एंजाइटी की बात की थी. फर्स्ट इज रियल और ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, सेकंड इज न्यूरोटिक एंड द थर्ड वन इज मॉरल एंजाइटी. सो रियल एंजाइटी इज व्हाट? When we feel anxious when we are in some real dangerous situations. For example, अगर कहीं पर आग लग रही है and I am standing in middle of it, तो I will feel anxious. It is a natural phenomena. वो real और objective anxiety है जिसके पीछे एक reason है, एक logic है कि हाँ there is something dangerous, that is why I am feeling anxious. So रियल और ऑब्जेक्टिव एंजाइटी का क्या होता है कि हमारा जो फियर है या जो एंशियसनेस है, इट सबसाइड्स व्हेन द थ्रेट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट. बट टू सम पीपल इट हैपेंस दैट कि रियल ऑब्जेक्ट खत्म हो गया है बट स्टिल दे आर एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम एंजाइटी. थ्रेट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट बट anxiousness and fear is still persisting, and then the person is so then we can say there is some disorder. This is not normal, this is abnormality कि real चीज जो dangerous थी वो हट चुकी है but still I am afraid. For example, a person who cannot drive because of the fear of accident is experiencing real anxiety to abnormal level. क्योंकि अगर आप
गाड़ी चला रहे हो, आगे से ट्रक आ गया, देन इट इज ऑब्वियस कि आपको एंजाइटी होगी कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन. बट whenever I have to drive, I start feeling anxious. मुझसे ड्राइव नहीं होता, मुझे डर लगने लगता है कि नहीं मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा. सो इट मीन्स कि जो मेरी रियल एंजाइटी है वो एबनॉर्मल लेवल तक चली गई हुई है. सो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन माई पर्सनैलिटी, इन माई बिहेवियर. देन फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट न्यूरोटिक एंजाइटी. सो न्यूरोटिक एंजाइटी होती है जब भी हमारे इड में और ईगो में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है और कुछ बहुत खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, देन वी एक्सपीरियंस न्यूरोटिक एंजाइटी. जो न्यूरोटिक, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो इड है वो चाइल्डहुड के टाइम पे, वो इन्फेंसी के टाइम पे, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ वो प्रेजेंट होता है हमारे अंदर. तो इसीलिए जो न्यूरोटिक एंजाइटी है इसका बेसिस चाइल्डहुड में है. See what happens. Children are punished for overtly expressing some impulse like aggression. Then the wish to gratify this impulse of aggression, जब उनमें आती है ये विश, तो दे फील एंशियस. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बचपन में वो जब भी एग्रेशन शो करता है तो उसको बहुत मार पड़ती थी, बहुत ज्यादा मार पड़ती थी. अब वो बड़ा हो गया है, उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शो नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज हैविंग न्यूरोटिक एंजाइटी. वो जो उसका इड इम्पल्स है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है. सो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोटिक एंजाइटी. सो इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम इन हिज पर्सनैलिटी, in his behavior, in his normal daily life behavior में neurotic anxiety जो है वो उसके behavior को affect करेगी. So neurotic anxiety basically एक unconscious fear होता है हमारे अंदर. ठीक है, कि unconscious ये कैसे है कि मुझे अभी गुस्सा आता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि क्या होता है कि मैं उस गुस्से को शो ही नहीं कर पाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, मुझे डर लगने लग पड़ता है, मैं एंशियस हो जाती हूँ. सो इट मीन्स कि न्यूरोटिक एंजाइटी इज वर्किंग इन द अनकॉन्शियस माइंड. और जो हमारा इड का डोमिनेंट बिहेवियर है, जो इड का जो छुपा हुआ डोरमेंट बिहेवियर है, उसको निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. ओके, सो देन देयर इज मॉरल एंजाइटी. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, मॉरलिटी का कंसेप्ट आता है सुपर ईगो में. ओके, सो मॉरल एंजाइटी कब होगी? जब आपके इड में और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. जैसे id motivates you to express an instinctual impulse that is contrary to your moral conduct. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली में मेरे कोई ग्रैंड पेरेंट है या मेरे फादर हैं या मदर हैं जो मुझसे बहुत एल्डर हैं और मॉरल कंडक्ट ये बोलता है कि मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी है, बट आई एम फीलिंग extreme level of aggression towards that person. I want to hit that person. तो मेरा id काम कर रहा है कि I want to hit that person, और मेरा सुपर ईगो मुझे ये बता रहा है कि you cannot hit, he is elder, he is your family member. तो उस टाइम, और ये अगर आप इसको मारोगे तो ये मॉरल कोड के खिलाफ हो जाएगा. तो when this thing happens, then the person experiences moral anxiety, and moral anxiety will end up in the feelings of shame and guilt. कि moral anxiety अगर मैं सफर फील कर रही हूँ तो एंड क्या होगा? I will develop the feelings of shame or guilt. अभी कि मैंने किया भी नहीं है वो behavior, but I will start thinking कि how could I even think of behaving in that way. So this is the moral anxiety. So Freud said कि I have got a message in the chat that please explain these 3 types of anxieties again and why do these anxieties occur. Yeah. So I think I have already explained, and I have also told you about the causes. So is there anyone who is having problem in types of anxieties? Just shortly explain in a short manner so that maybe they join late or something. Yes, but I guess it will take a lot of time. So let's do one thing. If anyone is having problem in these 3 types of anxieties, write it here.
I will explain it in the end. And Nida Asif, I will explain it in the end. अभी ये थोड़ा लंबा खिंच जाएगा. Okay, so don't worry. I will explain it in the end. Okay? Sure. Okay. So, moving forward, Freud said कि जब भी हम एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, as I have already told you कि फ्रॉइड ने बात की थी होम्योस्टेटिस की, कि हमें जो है वो बैलेंस्ड रहना है. जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड डिमांड करता है बैलेंस को मेंटेन करना. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम कोई एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इम्बैलेंस होगा, हम डरेंगे, हम एंग्शियस हो जाएंगे, तो देयर इज सम इम्बैलेंस इन अवर माइंड. तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रॉइड सेड कि अनकॉन्शियसली हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं जिससे हम उस एंजाइटी से कोप कर सकते हैं. अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हैं कुछ जो हमें नहीं पता है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन स्ट्रेटजीज को, और अपने एंजाइटी के साथ कोप करते हैं और अपनी एक जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज है उसको बनाए रखते हैं. तो जो अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज हैं उनको कहा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म्स. ओके, सो डिफेंस का क्या मतलब है? डिफेंस मींस अपना बचाव करना, चाहे वो फिजिकली अपना बचाव करना है या फिर मेंटली अपने आप को बचाना है. ठीक है, तो ये होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. सो मूविंग फॉरवर्ड टू डिफेंस मैकेनिज्म्स. डिफेंस मैकेनिज्म्स आर बेसिकली अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो हमारा ईगो इस्तेमाल करता है. मैंने आपको बताया कि ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे फोकस करता है, वो रैशनल है, वो डायरेक्टर है एक्चुअल में हमारे बिहेवियर का. और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ईगो जो है वो स्टैंड आउट करता है, हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करता है. ओके, सो ईगो जो है इन अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस को एम्प्लॉय करता है सो दैट अनकॉन्शियसली हम वो जो रियलिटी है उसको डिस्टॉर्ट कर सके, जो हमारी एंजाइटी है उसको हम कम कर सकें. सो ईगो वर्क्स एज द सेवियर. ओके, सो फ्रॉइड बिलीव्ड दैट डिफेंस मैकेनिज्म्स are very essential for effective coping with everyday life, because you know as individuals आप देखोगे every day we are experiencing some kind of stress of one thing or the other. कभी किसी ने कुछ बोल दिया उसका स्ट्रेस है, कभी मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो उसका स्ट्रेस है. so every time we are having stress. so इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो we will be stressful for all the time. So just to keep our mind healthy and get this stress out of our mind, we make use of defense mechanisms to cope करने के लिए everyday life के साथ. Okay, so moving forward to defense mechanism. Wait a second. Okay, so the major ego defense mechanisms. See, Freud has given some defense mechanisms. बाद में उसमें कुछ additions भी हुई. I have not talked about कि किसने कौन सा defense mechanism दिया है. You can do it yourself. Just go to the Google and you can search, or in books you can find out कि Freud ने originally कौन से defense mechanisms दिए थे और बाद में Anna Freud ने या किसी और ने किन defense mechanisms पे काम किया. So first defense mechanism is repression. Before talking about repression, I will talk about suppression, to suppress the things. So as I have told you कि जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो अनकॉन्शियसली काम करते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं. सो जो रिप्रेशन का एक काउंटर पार्ट है जो कॉन्शियसली काम करता है वो है सप्रेशन. ओके, क्या होता है, मेरी लाइफ में कुछ हुआ, कुछ बुरा इवेंट हुआ, अब मैं उस चीज को याद नहीं करना चाहती हूँ. जब भी मेरे दिमाग में उस चीज का ख्याल आता है तो मैं कॉन्शियसली सप्रेस करती हूँ उस थॉट को कि नो आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट,
आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट। तो जब मैं उसको कॉन्शियसली जान के अपनी मर्जी से जब मैं उसको दबा रही हूँ उस थॉट को, तो वो है सप्रेशन। और जब हमारा माइंड अनकॉन्शियसली हमारे एक्सपीरियंसेस को दबाने लगता है, तो उसको बोला जाता है रिप्रेशन। वन सेकेंड। सो दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। जो कॉन्शियस है वो सप्रेशन है और जो अनकॉन्शियस है वो रिप्रेशन है। सो रिप्रेशन क्या होता है? जो भी हमारी लाइफ के कुछ एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स, फीलिंग्स या इम्पल्सेस होते हैं, हमारा माइंड जानता है कि अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो हम एंग्शियस हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो हमारा माइंड खुद ब खुद उन चीजों को रिप्रेस करता जाता है। हमें नहीं पता है रिप्रेस हो रही है, बट वो अल्टीमेटली खुद रिप्रेस हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 years. नाउ द पर्सन does not clearly remember the experience. He only remember the vague details. कि अब उस इंसान को नहीं याद है। अदरवाइज 3 years इज अ लॉन्ग टाइम। अगर 3 साल आप एक जगह पर रहे हो तो आपको उस जगह के बारे में हर चीज याद होनी चाहिए। But now the person is not able to remember everything. He can just recall the vague details. So it means कि उसके माइंड ने रिप्रेशन का इस्तेमाल किया है। अनकॉन्शियसली वो जो बुरी मेमोरी थी उसको दबा दिया है। Second one is displacement. So what is displacement happens is emotional जो हमारी impulses हैं are redirected towards a substitute person or object. For example, मेरे बॉस ने मुझे कुछ कह दिया, कुछ हेटफुल कमेंट पास कर दिया। मेरी गलती थी या नहीं थी, उन्होंने हेटफुल कमेंट पास कर दिया। अब आई कैन नॉट टेक दैट हेटफुल कमेंट। मुझे वो टॉलरेट नहीं हो रहा है कि हाउ ही हैज सेड दिस थिंग टू मी एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि वो मेरा बॉस है, ही इज माय सीनियर। अगर मैं कुछ कहूंगी तो ही कैन जस्ट किक मी आउट ऑफ द ऑफिस, ही कैन जस्ट टेक अवे माय जॉब। सो मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकती, बट मेरा दिमाग उस प्रेशर को, उस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से मैं क्या करूंगी, उस बॉस के बजाय कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट या पर्सन पे अपना गुस्सा निकाल दूंगी जिसके बारे में मुझे पता है कि ये इंसान मेरा हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, बॉस के साथ झगड़ा हुआ, बॉस ने कुछ बोला, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं घर आई, मैंने अपनी यंगर सिस्टर पे हाथ उठा दिया या मैंने उसको बहुत डांट दिया किसी छोटी सी बात के लिए। सो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम आम हिंदी भाषा में बोलते हैं किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल देना। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज। देन देयर इज sublimation. Now what is sublimation is, we all have some sexual urges. जब वो sexual urges overpower करने लगती हैं तो हम उन सेक्सुअल अर्जिस को जब रीचैनलाइज करते हैं किसी ऐसे काम में जो प्रोडक्टिव हो और जो नॉन सेक्सुअल है, तो उस चीज को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रेजुएट स्टूडेंट वर्क्स ऑन हर थीसिस 14 hours a day while her husband is on an extended business trip. It means in the graduate student, sexual urges are overpowering, but as she cannot fulfill her sexual urges right now, what she is doing, she is sublimating. Sublimating मतलब किसी और काम पे ध्यान लगा के जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी साइकिक एनर्जी है, उसको आप किसी और काम में लगाने लग पड़ोगे। ठीक है, सो दिस इज सब्लिमेशन। सी जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, वी सुजेस्ट सम पीपल कि कोई बच्चा बहुत एग्रेसिव है, तो हम बोलते हैं, उसके पेरेंट्स बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट से कि ये बहुत एग्रेसिव है, तो वी से कि इसको आप किसी स्पोर्ट्स में लगाओ, इसको किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगाओ, इसको जिम भेजो या फिर इसको कोई फुटबॉल या बास्केटबॉल वो खिलाओ। व्हाट इज दैट? दैट इज सब्लिमेशन। वी आर मेकिंग यूज ऑफ सब्लिमेशन कि जो उसकी See, Freud talked about sexuality in his theory a lot, but the sexuality does not mean adult sexual activities.
Okay, in his theory, everywhere it does not mean that. According to Freud, sexual urge कुछ भी वो हो सकती है जो हमें pleasure देती है. ठीक है, मुझे गुस्सा आया है, मुझे कब मेरा गुस्सा शांत होगा? जब मैं 4 चीजें तोड़ दूंगी, जब मैं किसी को थप्पड़ लगा दूंगी, तो it will give me pleasure. तो aggression according to Freud is a sexual urge. So फ्रॉइड ने जो सेक्सुअलिटी की बात की है वो हर टाइम इट इज नॉट अबाउट एडल्ट सेक्सुअल एक्टिविटी. सो आई एम मेकिंग इट क्लियर. सो अगेन हियर कि अगर एक बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको कोई क्रिएटिव काम करवा दो. सो उसका जो वो साइकिक एनर्जी है एक चीज की, वो रीचैनलाइज हो जाए दूसरी चीज में. देन देयर इज रैशनलाइजेशन. व्हाट इज रैशनलाइजेशन? Rationalization is basically we have done something whether it be socially acceptable or not. अब हमें अपने एक्शन को जस्टिफाई करना है. अब हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कि मुझे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया. ओके, नाउ आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ फील कि आई एम नॉट गुड एट स्टडीज, इसीलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया. I don't want to make myself feel as a failure. इसीलिए मेरा दिमाग क्या करेगा? वो इस चीज को जस्टिफाई करने लगेगा कि हाँ अच्छा हुआ, मुझे वैसे भी उस यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं था, उसमें बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, मुझे किसी और यूनिवर्सिटी मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगी. सो दिस इज रैशनलाइजेशन. जब हम किसी बिहेवियर के लिए किसी इवेंट को हम जस्टिफाई करने लग पड़ते हैं, सो दैट कि जो हमारा अनकॉन्शियस है या जो हमारा माइंड है, जो हमारा ईगो है, वो हर्ट ना हो, तो उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन. देन द नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज प्रोजेक्शन. सो प्रोजेक्शन इज बेसिकली, प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं? खुद की अपनी फीलिंग्स को जब मैं दूसरे पे डाल दूंगी. ठीक है, the attribution of one's own acceptable urges or qualities to others. For example, a married woman is sexually attracted towards a coworker. अब वो ये बताएगी नहीं कि I am attracted towards this person, क्योंकि उसको लग रहा है it is not socially acceptable, उसके दिमाग को ऐसा लग रहा है. तो वो क्या करेगी? वो बोलेगी कि my coworker is flirting with me. So this is projection. जैसे प्रोजेक्टर क्या करता है, आप सबने प्रोजेक्टर देखा होगा, वो क्या करता है कि जो खुद उसके अंदर जो मटेरियल है, उसकी जो फाइल है, उसको वो सामने वाली दीवार पे डिस्प्ले कर रहा है, सामने वाली शीट पे डिस्प्ले कर रहा है. सो जो मेरी फीलिंग्स हैं उसको मैं किसी दूसरे बंदे के थ्रू डिस्प्ले करवाऊंगी. ओके, सो दिस इज प्रोजेक्शन. देन देयर इज रिएक्शन फॉर्मेशन. सो रिएक्शन फॉर्मेशन इज basically I am having feelings of hatred towards a person. Clear hate. ठीक है, साउंड हेट मैं किसी एक इंसान को करती हूँ, लेकिन मैं उस अपनी जो हेट्रेड की फीलिंग है उसको मैं लव में बदल दूंगी. मैं उस इंसान के साथ ऐसे बिहेव करूंगी कि वो मेरे लिए बहुत खास है. I will behave in a very affectionate way towards that person. So reaction formation की एक सिंपल सी एग्जांपल है. For example, Mr. A is attracted towards her friend, towards his friend. Okay, so Mr. A is attracted towards his friend. Attracted है वो, लेकिन वो इसको किस में चेंज कर देंगे? वो पब्लिकली उस इंसान के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए हेटफुल कमेंट्स बोलेंगे. ठीक है, सो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन की. अगर हम किसी के लिए एक फीलिंग रखते हैं बट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको एक्सट्रीम ऑपोजिट वे में बोलना शुरू कर देंगे. थिंकिंग और बिहेविंग इन अ वे दैट इज एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ द अनएक्सेप्टेबल अर्जेस और इम्पल्सेस. ठीक है, सो इन रिएक्शन फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हेट्रेड की फीलिंग है उसको हमारा दिमाग लव की फीलिंग्स में चेंज कर देता है. ठीक है, जो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो इस मैकेनिज्म को यूज करता है. देन देयर इज डिनाइल, अनदर डिफेंस मैकेनिज्म. डिनाइल इज द फेलियर टू रिकॉग्नाइज और
acknowledge the seriousness of a situation. कोई चीज एंजाइटी प्रोवोकिंग है, हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. ओके, अ पर्सन इज एल्कोहलिक. बीइंग एल्कोहलिक कैन जनरेट एंजाइटी, बिकॉज व्हेन यू विल थिंक कि मेरा एल्कोहलिक होना मेरी फैमिली के लिए कितना खराब हो सकता है, सो इट विल जनरेट एंजाइटी, बट द पर्सन विल फेल टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट ही इज एडिक्टेड. सो ये होता है डिनायल, साफ मना कर देना. एक चीज की सीरियसनेस को, एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. Then another defense mechanism is undoing. So what is undoing is basically, मैंने एक चीज करी, ठीक है, जो अनएक्सेप्टेबल थी. हमारा अनकॉन्शियस माइंड मोस्टली उन्हीं चीजों पे फोकस करता है जो अनएक्सेप्टेबल होती हैं, हम सीधे नहीं बोल सकते हैं जो चीजें, ठीक है. सो अनडूइंग में क्या होता है कि मैंने एक बिहेवियर शो किया, अब उस बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं कोई सेकंड बिहेवियर करूंगी. जैसे एक लेडी ने अपना टैक्स को रिफंड करवाया चीटिंग से, ठीक है. सो दिस इज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ना, बट नाउ दिस लेडी विल मेक अ लार्जर डोनेशन टू द चर्च कलेक्शन. इससे क्या होगा, मेरा जो अनकॉन्शियस है, मेरा जो दिमाग है, वो अपने आप को ये अनकॉन्शियसली समझा लेगा कि हाँ ठीक है, मैंने यहाँ से पैसे बचाए, कोई बात नहीं, बट मैंने डबल डोनेट भी तो किया है ना. सो जो मुझे एंजाइटी हो रही थी करप्शन की, उससे इसने मुझे बचा लिया, ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन. Last one is regression, and after this we will end the session and then we'll rejoin it. Okay, as the 40 minutes will be over in just 3.5 minutes. I'll end it up and then we'll end the session. Okay, so the last defense mechanism is regression. What is regression? Regression is basically, now I am an adult. सी यू कैन सी कि बच्चों का बिहेवियर कुछ और होता है, चाइल्डहुड में हमारा बिहेवियर किसी और तरह का होता है, एडोलेसेंट में कुछ और होता है, और एडल्टहुड में हम मैच्योर बिहेव करते हैं. लेकिन अगर एडल्टहुड में होते हुए मैं चाइल्डहुड का बिहेवियर शो करने लगूं, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय माय अनकॉन्शियस माइंड, माय ईगो. रिग्रेशन, ठीक है. जैसे after her parents' bitter divorce, a 10-year-old girl refuses to sleep alone in her room, crawling into bed with her mother. So what is it कि 10 साल का बच्चा अकेले बेडरूम में सो सकता है, बट और चाइल्डहुड का बिहेवियर क्या है, अकेले ना सोना, अकेले डर लगना, इसीलिए मम्मा पापा के साथ सोना. सो व्हेन एक जो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर सकता है, लेकिन वो प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, तो इट मींस कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, ठीक है. आपने बहुत बार देखा होगा, इट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल बेसिकली अमंग गर्ल्स. आई डोंट नो इसको जनरलाइज करना चाहिए या नहीं, बट आई हैव रेड अबाउट इट समवेयर एंड आई हैव आल्सो सीन इट कि जो लड़कियां होती हैं वो बच्चों के जैसे बात करना शुरू कर देंगी, तोतले बोलना शुरू कर देंगी, बच्चों के जैसे बात करने लगेंगी. जब वो एंजाइटी में होंगी, डरी हुई होंगी, और उनसे कोई पूछेगा अच्छा क्या हुआ है, तो दे विल जस्ट बिहेव लाइक अ 5 or 6 year old girl. I can see the smile on Ekta's face. So but actually it happens. बहुत बार ऐसा होता है कि and girls generally do this thing. So this was all about defense mechanism. So I think we can end the session and then we'll continue. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes. Anjali ma'am, kindly end the session. We will rejoin it.